کہ ITA کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ ITA جب آپ جاب آفر, مائنڈ یو, دوبارہ سے سن لیں, اس کو ریوائنڈ کر کے سنیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے, آن ریکارڈ کہی ہے کہ ITA جو جاب آفر والے پروگرام ہے, AIBP, RINP, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسکیمر کا اسکیم, بالکل جادوگر کا جادو توڑنے کے لیے کوئی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ کسی ایک کا ویزا نہیں ہے. AIPP 5 سال سے زیادہ ہو گیا چلتے ہوئے, آپ کے پاس ایک ویزا نہیں ہے. آپ ادھر ادھر لاہور, اسلام آباد, کراچی, ادھر ادھر آفیسز کر کے اتنے زمانے سے کر رہے ہیں, ایک ویزا آپ کے پاس نہیں ہے. کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے جب آپ کا کیس ریفیوز ہوگا, صرف ریفیوز نہیں ہوگا, آپ بین بھی کیے جائیں گے. رائٹ. جب مجھے یہ سننے کو ملتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ لوگ انہی اداروں میں بیٹھے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ مارکیٹ خراب کر رہا ہے. بھائی میں آپ کی مارکیٹ خراب کروں گا کیونکہ آپ اسکیم کر رہے ہیں. اتنے پورٹ فولیو کے ساتھ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے, وزن تو آئے گا. Hello everyone, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting, once again with all of you, and I welcome you back to another episode of Immigration Discussion Series with Mr. Adil Ismail. This episode is going to be a bit different and at the same time it's going to be very very interesting as well, کیونکہ اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ سوالات جو کہ اکثر و بیشتر کلائنٹس کی طرف سے کیے جاتے ہیں جب وہ کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کی خدمات لینا چاہتے ہیں. کچھ سوالات کنسلٹیشن سے پہلے کیے جاتے ہیں اور کچھ سوالات کنسلٹیشن کے بعد بھی جنم لیتے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں تاکہ آپ بینگ اے کلائنٹ یہ جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ کون سا امیگریشن کنسلٹنٹ آپ کے لیے بہتر ہے. سو آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اپنے مہمانوں کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤں گا. آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک ٹیم ممبر بھی موجود ہیں, مس نمرا, وہ بھی اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اینڈ آف کورس ایز یوزول آر CEO اینڈ سینئر کنسلٹنٹ مسٹر عادل اسماعیل, آف کورس the most experienced face in the immigration industry in Pakistan and as well as the highly trusted immigration consultant. So آج ہم ان سے یہ سارے سوالات کریں گے اور آپ تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے جو کہ یقیناً آج سے پہلے کبھی نہیں ڈسکس کیے گئے. سو اس ڈسکشن کا ہم فارملی آغاز کرتے ہیں اینڈ ہمارے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ نے پھر سے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور لیکن یہ میں آپ کو بالکل باور کروا سکتا ہوں کہ جتنی ہماری آڈینس ہے, کلائنٹس ہیں, وہ تہہ دل سے آپ کو شکر گزار بھی ہیں چونکہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں, چاہے وہ پھر امیگریشن پروگرامز ہوں یا امیگریشن فراڈ سے کس طرح بچا جائے. تو یہ ایک پبلک سروس بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, تو لوگ بڑے شکر گزار ہیں. سو تھینک یو سو مچ کہ آج بھی آپ نے اپنا وقت نکالا. بالکل تھینک یو ان آڈینس کا بھی جو ہمیں دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں اور اپنے تئیں جو ہے وہ ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہمارے لیے بڑا اپریسیشن کا باعث ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپیریئر کنسلٹنگ کی جو یوٹیوب چینل ہے خاص طور پر وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جتنی اویئرنیس ہم پھیلا سکتے ہیں. دیکھیں چونکہ ہم جس پروفیشن سے ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیشن پروفیشن ہے, بالکل, کیونکہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آپ چاہے وہ امیگریشن کے معاملات ہوں, اسکلڈ کے ہوں, بزنس کے ہوں, انویسٹمنٹ کے ہوں یا سیری کے ہوں, ان سب میں آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں, کیونکہ اکثر اور بیشتر لوگوں کو پتا تو ہے کہ یہ کاؤنسلنگ ورڈ ہے اور کاؤنسلنگ کا لیکن مطلب گہرائی میں نہیں پتا. بالکل, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی, تو وہ میں اس لیے یہ جو آپ نے ڈسکشن سیشن رکھا اور جب آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ فریکوینٹلی آسک کوشچن کرنا چاہتے ہیں, تو یہی گو ہیڈ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ آگاہی مزید بھی پہنچے. جس طریقے سے ہم اسکیمس پہ بات کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک بند باندھ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ اس پروفیشن کو مس یوز کر رہے ہیں اور وہ صرف پیسہ بنانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. بالکل, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم ایز اے کلچر, ایز اے نیشن, ایز اے منحاص القوم جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ ایجوکیشن کی طرف اور ایجوکیشن کے جو حقوق ہے اس کی طرف نہیں ہے. بالکل, ہم پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, نہ ہو رہے ہیں. بالکل, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سوالات بھی کرتا ہے اور اس کو اپنے طور پر ہی سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو آج انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیدہ سوالات ہیں
जो बेसिक आपने जो पिक की है कि जो खास तौर पर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें एजुकेट करने की जरूरत है, हम लोगों को एजुकेट करें ताकि वो उनके लिए भी आसानी हो, हमारी भी जिंदगी उसमें आसान हो, उनकी भी आसान हो, ताकि वो इन सब चीज़ों से चक्रों से निकल जाए। क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है, ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ जो है वो बना कर बेची जाती है, और हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ख्वाहिशमंद हैं, तो वहाँ पर जाने का जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा होता है, और उसको वो कैपिटलाइज करते हैं सो कॉल्ड एजेंट के नाम से, सो कॉल्ड कंसल्टेंट के नाम से, जो कि ना एजुकेटेड होते हैं, ना नॉलेजेबल होते हैं, ना उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सही होता है, तो इस बुनियाद से लोग जो है इफेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर आगाज़ करते हैं सवालात का। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिस तरह आपने कहा मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये जो आजकल मार्केट में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इमिग्रेशन स्कैम, और पिछली वीडियो में भी जिस तरह मैंने कहा था कि जो इमिग्रेशन स्कैमर होता है उसकी टेक्निक्स हर वक्त बदलती जाती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जब हमने देखा और कहा भी और लोगों को बताया भी कि ITA किस तरह से लोग जो है वो फेक करके बोगस जॉब ऑफर्स पे कर रहे होते हैं, तो अब हम ये भी जांच रहे हैं जब लोग आकर हमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मींस के अब जब उनके क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं कि ITA आ गया, अब वो वेट करें कि वीज़ा भी आएगा, तो अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अब वीज़ाज भी फेक आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई एप्लीकेंट है, फ़र्ज़ किया कि उसने किसी कंसल्टेंट को पैसे दे भी दिए, ITA के बाद भी पैसे दे दिए, तो अब वो वेट कर रहा है, और अगर किसी कोई कंसल्टेंट उसको वीज़ा भी पेश करता है कि मैंने आपका वीज़ा लाया है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो वीज़ा सही भी है या नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें गहराई में जाकर देखना पड़ेगा। एक ये है कि फ़िलहाल जितने भी सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं जो एक नाम के साथ भी जिसको हम कह सकते हैं कि काम कर भी रहे होंगे, तो वो तो शायद मेरे नहीं ख्याल है कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकत में जाएंगे भी क्योंकि देखें, अगर आप एजुकेटेड लोगों से डील कर रहे हैं और आप उसको फेक वीज़ा दे देंगे तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, बहुत खतरनाक है। बट ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं, और इसमें आप जो है वो गांव देहात से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से नहीं है ताल्लुक़, तो वहाँ जो एजेंट बैठा हुआ है गो कि वो हमारा देखें, हमें ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए इस पर बात करने की, क्योंकि हम कराची में हैं, हमारा मेन सिटी के अंदर है, हम लाहौर को कवर करते हैं, हम इस्लामाबाद को कवर करते हैं, सोफिस्टिकेटेड एक ऑडियंस है। यहाँ पर ये चीज़ का होना बहुत रेयर होता है। बट एक 2017 में भी अगर आप देखें कि लाहौर से भी हुआ, एक जगह से और जगहों से भी हुआ, कराची में भी हुआ कि लोगों को फेक वीज़ा के ऊपर FIA ने जो है वो कनाडा जाने के वीज़ा थे वो, और कनाडा के वीज़े के ऊपर उन्होंने ऑफलोड किया उनको, और वो जाली वीज़ास थे। तो इससे भी जो है लोगों को खबरदार रहना चाहिए कि वीज़ास भी जाली हो सकते हैं। अब सवाल ये होगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो भाई सवाल आपको पूछने से पहले ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये सारे टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हुई है। आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मामला ये है जिसको हम कह रहे हैं कि एजुकेट होना, सिर्फ मामला ये है कि आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, मामला ये है कि आप उसको वेरीफाई नहीं करते, मामला ये है कि आप उसको समझने चाहते नहीं है कि मुझे वीज़ा आ गया। पहली तो बात ये है, जितने भी तालीमी याफ्ता और जो कम तालीमी याफ्ता लोग देख रहे हैं और उनको कोई मेसन का वीज़ा, कोई प्लम्बर का वीज़ा, ट्रक ड्राइवर का वीज़ा, इस तरह के वीज़ा के ऊपर कोई कर देता है, तो ना तो पहले नोट कर लें कि कनाडा के वीज़ाज विदाउट VFS वीज़ाज नहीं आते, नहीं मिलते। कहीं से अगर वो मिल रहा है आपको ऐसे उठा के आपका पासपोर्ट लेता है और पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्प करके लाता है। सबसे बड़ा धोखा ये है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एप्लीकेंट ने खुद जाना है VFS, तो VFS में खुद जाना है, बायोमेट्रिक्स आपने खुद करना है, उसकी बायोमेट्रिक्स की फीस भी होती है। अब ये चीज़ें जब नहीं पता है तो वो नुकसान के बायस होती हैं। और फिर चूँकि मैं मेन स्ट्रीम व्हाट्सएप के ऊपर भी हूँ, इंक्वायरीज पे भी हूँ, क्लाइंट के साथ भी हूँ, तो मुझे ये सारे व्हाट्सएप आते रहते हैं और लोग वीज़ा भेजते हैं, सर ये बताइए जाली वीज़ा सही वीज़ा। तो पहली बारी भाई बात ये है कि हम वेरीफाई करने की अथॉरिटी नहीं, हम तो आपको गाइड कर सकते हैं। और हम क्यों अपना टाइम निकाल करके, हम एजेंसी तो कोई नहीं है ना, हम आपको वेरीफाई करके दें, ये आपने पहले काम करना चाहिए था। तो इसलिए भी ज़रूरत पेश आती है कि इस तरह की वीडियोस करके हम बना दें, क्योंकि ये आपको जो है जब वीडियोस कर देने से ये फ़ायदा होता है कि ये आपके सोशल नेटवर्क पर पड़ी रहती हैं, जब चाहे जाकर देख लें, सुन लें, समझ लें। तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कनाडा की सर्विसेज सेक्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे, आप जो है वो अपने ऑडियंस को ये
ये दिखाएंगे स्टेप्स के ऊपर कि किस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपका COPR नंबर क्या है, आपका जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी नंबर क्या है, आप किस तरीके से अपने सरनेम को डालकर, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ को डालकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये लेजिटिमेट वीजा या कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है या नहीं है। तो ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जानना जरूरी है, और आज की वीडियो में उनको ये लिंक्स और चीजें, और ये बहुत सारे और भी लोगों ने कोशिशें की भी हैं और उनकी कोशिशों से बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक कैनेडा वीजा। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं और एक्सपर्ट की तरफ से आता है तो फिर एक इंडोर्समेंट हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था कि चूंकि हम कराची सिटी में भी हैं और पाकिस्तान के बड़े शहरों में कुछ ऑब्वियसली ये कंसल्टेंट सब आ चुके हैं जो कि लोगों को ITA दिखाकर और उनसे फिर 10-15 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ठीक है आपका ITA आ गया, अब वीजा आना है, तो क्लाइंट वेट कर रहा है कि यार अच्छा वीजा आएगा, तो इसलिए ये हम लेकर आए। ये मैं बहुत वाज़ेह बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा भी आज कवर कर देता हूँ। ये मैं बहुत वाज़ेह एक बात ये कर चुका हूँ कि ITA कुछ भी नहीं होता। इसका जब आप प्रोमो बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जस्ट फॉर द थ्रिल भी होता है कि आप एक अच्छा लग करने के लिए, बट द थिंग इज दैट कि लोग आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे कि मैंने जो बात की है उसको सिर्फ पिक कर रहे हैं। आदिल साहब तो कहते हैं कि ITA कुछ नहीं होता, और फिर हम अपने उसमें भी कहते हैं, अब जब हमसे कोई काउंसलिंग कहता है कि हम ITA कि जो है ना वो आ जाएगा तो आपका इसका मतलब है कि आप देखिए, पहली बात ये है कि हम कौन से वीज़ाज को डील कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ ITA कुछ नहीं हो रहा, तो मैं किस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं किस वीज़ा क्लास के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं किन लोगों को एक्सपोज करने के ऊपर बात कर रहा हूँ। कि ITA जब आप जॉब ऑफर, माइंड यू, दोबारा से सुन लें, इसको रिवाइंड करके सुने कि मैंने ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है कि ITA जो जॉब ऑफर वाले प्रोग्राम है, AIPP, RINP, आप जो प्रोग्राम्स के ऊपर बात करते हैं और लोग आपको जॉब ऑफर बगैर एम्प्लॉयर के डिटेल्स दिए हुए आपको जॉब ऑफर कराते हैं, तो आज मैं ये बात आपको बताऊंगा लोगों को, ताकि ये बात भी समझ में आ जाए कि चूंकि पिछली वीडियो में शायद हम नहीं कवर कर सके कि ITA आपका जो है वो कुछ इसलिए नहीं है कि हमने इनका काउंटर बांधा है कि ITA आपको बगैर सारी चीज़ों के, बिल्कुल आपको एम्प्लॉयर का पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं, उसका आपने IM8 फॉर्म एम्प्लॉयर आपने साइन नहीं किए, ये आप लोगों को पता नहीं है, उसके बाद आपको ITA जो है जिसको नोटिफिकेशन आप कह रहे हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्यों कर 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए देंगे। ये एक जो है कि स्कैमर्स का स्कैम, जादूगर का जादू तोड़ने के लिए कोई आपको अमल करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं देने आपके नोटिफिकेशन है उसके ऊपर, मुझे जब आपका COPR आएगा, COPR आप होल्ड कर लें, COPR आए, मैं उसको सर्विसेज जो की वेबसाइट पर जाकर मैं इसको चेक करूंगा, देन मैं आपको पैसे पे करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जिस तरीके से भी फिर आप काम करते हैं। तो एक तो यह है कि किसी एक का वीजा नहीं है, AIPP 5 साल से ज्यादा हो गया चलते हुए, आपके पास एक वीजा नहीं है, आप इधर उधर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इधर उधर ऑफिस करके इतने जमाने से कर रहे हैं, एक वीजा आपके पास नहीं है। 6 8 10 महीने से तो हम काउंटर कर रहे हैं, एक वीजा आपके पास नहीं है। तो ये तो एक वाज़े है सूरत हाल, लोग समझते हैं, लेकिन जो दुख की बायस है वो ये बात है कि अक्सर और बेशतर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और कर रहे होते हैं जब उनको ये वीडियो दिखती है या वो सुनते हैं और वो समझते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ सेम यही बात हुई और वो पैसे आधे से ज़्यादा लुटा चुके हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने लास्ट में भी बात की थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अक्सर को मैं ये कह देता हूँ, वो शायद बुरा मान जाते होंगे, मुझे तो नहीं कहा कभी, लेकिन वो बुरा मान जाते होंगे, मैं कहता हूँ आप भी जो है वो बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, इसलिए कि आपने बगैर ये सारी चीज़ों को समझे हुए कह दिया, और इससे ऑन टॉप ऑफ इट आप ये बात समझें कि जब आपका ITA आ गया, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने डाल दी, अगर ये एज्यूम कर ले जाए कि उन्होंने सारी डिटेल्स आपकी प्रॉपर सही तौर पर डाल दिए इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर विद देयर फेक ITA या फेक जॉब ऑफर, तो आप ये समझ लीजिए कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका केस रिफ्यूज होगा, सिर्फ रिफ्यूज नहीं होगा, आप बैन भी किए जाएंगे। राइट, ये बात अब जो है वो बताने की भी जरूरत है कि भाई पहली तो बात ये बड़े आप खुश हो रहे हैं, एक ऐसी कंपनी से काम कर रहे हैं, ना वो कैनेडियन है, ना वो लाइसेंस है, ना उनके लोग जो इदारे में काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर से आए हुए, उनको टास्क दे दिया कि आपने ये बेचना है, तो वो बेच रहे हैं। और फिर जब मुझे ये सुनने को मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे जो है वो लोग इन्हीं इदारों में बैठे वो कह रहे होते हैं ये बंदा मार्केट खराब कर रहा है। भाई मैं आपकी मार्केट खराब करूंगा क्योंकि आप स्कैम कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, और जो मेरी बात से सहमत हैं, समझते हैं, जो एक देखिए कैंडिडेचर होता है, बिल्कुल जो बात कह रहा है पहले तो आप प्रूव करें, आप मेरे सामने हैं क्या, जितने बच्चे और जितने मैनेजर्स जो है उनके या सिंगल जो लोग काम कर रहे हैं तो वो हैं क्या, उनका पोर्टफोलियो क्या है। इतने पोर्टफोलियो के साथ अगर कोई बंदा बात कर रहा है
वजन तो आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये बात कर रहे हैं और जब ये हम बंद बांधने की बात कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है। मुझे एक क्लाइंट ने जो है वो आकर अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग समझते हैं, उन्होंने कहा कि समझते हैं कि शायद आप ज़्यादा फेम लेने के चक्कर में हैं या आप समझते हैं कि सबको छोड़ो और मुझसे करवा लो। मैं एक बात कर चुका हूँ, शायद कितनी बड़ी वीडियोज़ होती है उसके अंदर से उसमें वो बात जो है डाइल्यूट हो जाती है। वही वाली बात है कि जिसने समझ नहीं होती वो समझ लेता है। कुछ लोग जो इसको सराहते हैं कहते हैं कि हाँ ये बात है। मैंने ये बात की कि भाई ये मैं हाथ जोड़कर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इंटरमीडिएट है, बीकॉम है और वो क्वालिफाई भी नहीं करता, वो 40-45 से भी ऊपर साल का है, मतलब 50 इयर्स में कुछ है या उसके क्रेडेंशियल वो मैच नहीं करते हैं, आप मुझसे इवैल्यूएशन लेकर देख लें। अगर वो पॉजिटिव आ जाए मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूँ, मैं नहीं दे सकता। सुपीरियर कंसल्टिंग पॉजिटिव असेसमेंट नहीं दे सकती। तो जब वो असेसमेंट ही नहीं है, मेरे लिए तो टारगेट भी नहीं है, तो मैं क्यों मूव जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ और ये सारे मूव्स जो है वो लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऐसे करें। भाई अगर आप बच जाएंगे तो आपका पैसा बचेगा। बिल्कुल। और ऑन टॉप ऑफ इट ये बात मैंने बड़ी वाजे कर दी थी कि अगर देखिए मैं हूं ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ RCIC कैनेडा, राइट। अगर कनाडा के मामले में खासतौर पर अगर कोई शख्स समझता है, स्केप्टिकल होते हैं बहुत सारे लोग, कोई अगर समझता है कि मैं जो है वो ज़्यादा फेम लेने के लिए कर रहा हूँ, देखिए फेम तो अल्लाह ने देना वो दे देगा, बिल्कुल, डजंट मैटर। बट अगर वो ये समझता भी है तो फिर आप ये कहें कि मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप जाकर रजिस्टर्ड कंसर्न से करें। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, पाकिस्तानी अवाम ये नोट कर लें, कनाडा के वीज़ाज़ के लिए आपने कहीं नहीं जाना, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाना है। ये बंद बांध जब तक नहीं बांधेंगे आपके साथ स्कैम होता रहेगा। हमारे पास फिर आप लेकर अपना रोना नहीं लेके आए, ऐसे ही, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते, हम अथॉरिटी भी नहीं है ना, आप कोर्ट में कोई केस कर सकते हैं। हाँ अगर आपके रिसोर्सेज की चीज़ें फिर आप निपटते रहे, चीज़ें करते रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे चूंकि आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हो और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है जो कि लोग नहीं समझ पाते या ओवरलुक कर जाते हैं, वो द डिफरेंस बिटवीन एन इन्विटेशन टू अप्लाई एंड नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि जिसके ऊपर पैसे मांगे जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है, वो बेसिकली ITA है भी नहीं। बिल्कुल, देखें ये तो बहुत क्लियरली हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ वही जो हमने बात भी की कि एजुकेट होना, एजुकेशन लेना एक अलग चीज़ है, बट एजुकेट होना, चीज़ों को समझना, वो एजुकेट कहलाता है कि बंदा आप एजुकेट हुए इस मामले के अंदर। हमारे यहाँ है कि डिग्रीज हैं, चीज़ें हैं, लेकिन समझने से हम कासिर हैं। बिल्कुल। हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरी सारी लफाजी बातों को छोड़ भी दें, मेरा आर्गूमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये बातें तो बाद में आएंगी कि नोटिफिकेशन है या नहीं है, ये बात तो बाद में आएगी कि ITA है या नहीं है, ये बात तो बाद में आएगी कि भाई वीज़ा मेरा मुझे चेक करना है या नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि आपने एक ऑफेंस किया है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पता चलेगा कि आपने नॉन ऑथराइज और जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से काम किया है, यही एक ऑफेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके ऊपर आप उसके ऊपर एतबार कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी एक आपका जो है गलत तरीके का है। और फिर बोगस जॉब ऑफर, नॉन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स के पास जाना छोड़े, आदिल इस्माइल साहब के पास नहीं आते, डजंट मैटर, सुपीरियर कंसल्टिंग के पास नहीं आते, कोई मसला नहीं, चूंकि ये मैं बात वाजे कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन का कंसल्टेंट नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं कंसल्टेंट जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियो पे भी हूँ, तो मुझे काम करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो मैं बड़े खुले दिल से जो है वो ये बात करता हूँ कि इसको आप कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल है अभी वाजे हो जाना चाहिए हमारे प्रीवियस वीडियो के बाद भी और इस वीडियो के बाद भी कि ITA और NOI के डिफरेंस भी समझ आए। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए या ओवरऑल अगर आप किसी भी कंसर्न से डील करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को फिर से बावर करवा दें, ऑल्दो कि हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से एक जेन्युइन कंसर्न को रजिस्टर्ड एजेंट को या रजिस्टर्ड कंसर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, CICC की वेबसाइट मौजूद है गवर्नमेंट की, अब चेंज हो गई, पहले RCIC थी, तो CICC की जो वेबसाइट है उस पर जाकर पोर्टल ऑलमोस्ट वही है, आपने जो है वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट का सरनेम आपने डालना है, वो आपको पता चल जाएगा कि रजिस्टर्ड कंसल्टेंट कौन है। उसकी ऑथराइज एजेंट को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो एजेंट के कॉलम में जो सरनेम ऑफ ऑथराइज एजेंट है, जैसे मेरे इसमें इस्माइल आता है, आपका अगर फाइंड आउट किया जाएगा तो आदिल लिखा जाएगा, तो फिर आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सर्च करेंगे गवर्नमेंट के पोर्टल पे वो आ जाएगा। इनके अलावा किसी से भी आपने जो है वो रब्ता नहीं करना है। कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को कंप्लेन कर सकते हैं कंसर्न के खिलाफ,
اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ جتنے بھی ہیں اور جو اگر وہ یہ اگر چاہیں اور یہ سمجھیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کہ سارے کے سارے مجھے ہی صرف دے دیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو نیچر کی جو چیزیں ہیں اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے, جس کا جو رسک ہے اس کو ملے گا. لیکن آپ کو ایک تو پیرامیٹرز اپنے سیٹ کرنے ہیں کہ ہمیں آنیسٹی سے کرنی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک پرنسپل ہے, یہ ایک آپ کا ایتھیکل بائنڈنگ ہے آپ کی کہ جیسے نیوزی لینڈ میں لوگ 99% جھوٹ نہیں بولتے, تو یہ ہمیں باندھنا پڑے گا, یہ ہم ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ ہماری ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. پلس جو پھر اگر میں جس دین کا پیروکار ہوں تو مجھے تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں جھوٹ پر نہیں کام کرنا, ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں, تو ہی ہم جو ہے وہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. تو سو سمپل اپنی لائف کو بڑا سمپل رکھیں, اسٹریٹ فارورڈ رکھیں. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. آئی گیس ہم نے کافی زیادہ انفارمیشن کور کر لیا, آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت میں لے چکا ہوں. مسٹر میں تھینک یو سو مچ فار یور پریزنس ایز ویل. سو آئی ہوپ کہ یہ سارے سوالات جو ہم نے آج فریکوینٹلی آسک کویشچنس کی مد میں کور کیے آپ کے لیے بینیفیشیل ہوں گے سمجھنے کے لیے, اور آپ بہتر طریقے سے ڈیسیشن لے پائیں گے, سلیکٹ کر پائیں گے, چوز کر پائیں گے اپنے امیگریشن کنسلٹنٹ کو. اور اگر آپ کسی بھی طرح کی پروفیشنل امیگریشن سروسز چاہتے ہیں, سو یو کین کانٹیکٹ us. So you can visit our website www.superiorimmigration.com, or you can also email us on info@superior.com.pk, and we'll be definitely happy to assist you all. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one. Thank you so much for watching.